Welcome everyone. Welcome to the fifth day of 7 days National Workshop on Research Methodology, jointly organized by Indian Accounting Association Mirzapur branch and Government PG College Obra. Today, after the fourth successful session of research methodology and with some very enthusiastic and dynamic responses from all our participants, we have landed upon the fifth day. And today our resource person will be Dr. Vikas Kumar sir. He is our core committee member. He is our mentor. He is our motivation for doing all such activities which we are doing today. So Vikas Kumar sir is working as assistant professor in Department of Commerce, Government PG College Obra. Prior to present, he was assistant professor in FMS, Banasthali Vidyapeeth, Jaipur, Rajasthan. He is also certified financial education resource person of Securities and Exchange Board of India, and he has conducted more than 50 financial education workshops in entire state of UP. He has done his doctoral research in the area of mutual funds from Banaras Hindu University, and prior to doctoral, he has done masters in commerce from Mahatma Gandhi Shastri Vidyapeeth and bachelors in commerce and law also from Harishchandra PG College, Varanasi. He has published 4 books, and I think 2 must be added in it, so it has become 6 now, and more than 25 research papers in national and international journals, and presented more than 60 research papers in national and international seminars and conferences. He is a life member of Indian Commerce Association, Indian Accounting Association, and Indian Accounting Association Research Foundation. Sir is a very dynamic personality, and moreover, जब भी उनका लेक्चर होता है तो एंड में ये जरूर देखने को मिलता है कि अगर कोई इंथुसियास्टिक नहीं भी है तो उनके वक्तव्य से और उनके बोलने के तरीके से इंथुसियास्ट हो जाता है. तो आई होप आज भी कुछ ऐसा ही होगा, एंड आई वेलकम डॉक्टर विकास सर टू टेक द लेक्चर and give the education to our participants. Over to you, sir. Thank you, Shashank, for nicely introduce me and create such a huge liability for next 1.5 year my screen. It's visible. Yes, sir. तो क्या हो गया, मेरा नहीं कर रहा है तो Screen is visible for all? Yes, sir. Yes, sir. Screen is visible. Yes, sir. Discussion: hypothesis testing and test statistics for attributes only. आज हम लोग केवल attributes की बात करेंगे, variables की बात नहीं करेंगे. Hypothesis is a combination of 2 words, hypo and thesis. Hypo is a prefix, means below, down, under the, and thesis means everybody knows what is thesis. उसी के लिए हम सब लोग परेशान हैं. बट हाइपोथेसिस मींस अंडर द थीसिस, मींस जो आपको एक निबंध लिखना है उसके बिलो क्या है, उसके नीचे क्या है, दैट इज हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस को जनरली हम लोग परिकल्पना कहते हैं. इट इज एन आइडिया प्रपोज्ड फॉर रिसर्चर. इट इज एन आइडिया प्रपोज्ड फॉर रिसर्चर फॉर द आर्गुमेंट, so that it can be tested to see क्या देखना है, might be true or not. Means hypothesis एक proposed idea होता है रिसर्चर का, जिस पे आर्गुमेंट करता है वो और उसको टेस्ट करता है कि वो ट्रू है या नहीं. Basic attributes in statistics. Quantitative characteristics may arise 2 ways: by measuring directly the numerical characteristics and by counting the presence or absence of descriptive characteristics of facts. देखिए, स्टैट्स में हम 2 तरह की डाटा को कलेक्शन करते हैं, एक न्यूमेरिकल को और एक डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंस और एब्सेंस को. मींस अगर हमने आपसे पूछा कि आपने कितनी आइसक्रीम खाई तो आप काउंटिंग में बता सकते हैं 1 2 3 4 5. लेकिन अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपको आइसक्रीम कैसी लगी तो आपका जो आंसर होगा प्रेजेंस और एब्सेंस के केस में होगा, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. बट काउंटिंग नंबर, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स इज नोन एज स्टेटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल like height, weight, age, income. And another type of descriptive fact is known as statistic of attributes.
लाइक एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी। मीन्स जब भी हम चॉइस प्रेफरेंस की बात करते हैं उसको हम एट्रीब्यूट से डिनोट करते हैं, और इन द केस ऑफ एट्रीब्यूट्स केवल प्रेजेंस और एब्सेंस ही डिनोट होता, ये एट्रीब्यूट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती। आज का जो सेशन है मेरा एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग का है, और स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स on the basis of qualitative characteristics. Classification of attributes, two types: simple classification and manifold classification. In simple classification it is also called twofold classification. Simple classification को हम twofold classification कहते हैं. In this classification both the fold of one attribute are classified, presence or absence. मीन्स हमने आपसे क्वेश्चन किया कि आइसक्रीम आपको कैसी लगी, तो आप उसका प्रेजेंस अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी, यस या नो में आप देंगे, तो वो टू फोल्ड क्लासिफिकेशन है. मीन्स सिंगल एट्रीब्यूट्स के अगर हम बोथ साइड की स्टडी करते हैं, क्लासिफाई करते हो, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल. मीन्स जैसे एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड आर द टू फोल्ड्स ऑफ ए सिंगल एट्रीब्यूट. Implied and unimplied, two-fold of a single attribute. Now manifold classification. In this classification facts are classified more than one attributes. जहां हम employment और education दोनों की बात करेंगे वहां manifold classification में हमें जाना पड़ेगा. पॉपुलेशन को सबसे पहले हमने मेल फीमेल में डिवाइड किया, प्रेजेंस और एब्सेंस में, फिर एजुकेटेड अनएजुकेटेड एंड सेकंड. अब मेरा सारे पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन है कि ये बोथ जो पॉपुलेशन है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर सेम और डिफर? यस सर. बोथ आर सेम और डिफर? सर दिस इज सेम. Different, sir. Sir, both are same. बोथ आर सेम. यस सर, बोथ आर सेम. थैंक यू. जिसने सेम बोला उसको भी धन्यवाद, जिसने डिफर बोला उसको भी धन्यवाद. अब देखिए क्या है, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स जो भी रिसर्चर हैं वो स्टैटिस्टिक्स डाटा कलेक्शन के बाद हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, और सारे रिसर्चर जनरली होता क्या है, हम लोग भी स्टार्टिंग में डाटा कलेक्शन के बाद तुरंत हम लोग एनालिसिस करने पहुंच जाते. क्लासिफिकेशन इज द बेसिकली मोर इंपॉर्टेंट देन कैलकुलेशन और एनालिसिस. देखिए ये जो डाटा है 240 पॉपुलेशन है इसकी, मेल 122, फीमेल 118, मेल 122 में एजुकेटेड 70, अनएजुकेटेड 52 एंड फीमेल एजुकेटेड 40, अनएजुकेटेड 78. अब सेकंड में आइए, एजुकेटेड 110, अनएजुकेटेड 130, मेल फीमेल 70-40, अनएजुकेटेड मेल फीमेल 52-78. अब आप बताइए कि आप सेम है या डिफर है दोनों? सर डिफर है. डिफर है सर. यस सर, सर डिफर है. डिफर है सर. डिफर है. चलिए, किसी का कॉन्सेप्ट सेम पे कंसेस कर रहा है? यस सर. जी सर. यस सर मेरा कॉन्सेप्ट है सेम पे. सेम पे. ठीक है, सेम पे देखते हैं. देखिए हम सबसे पहले मेल को टच करते हैं, फर्स्ट में और सेकंड में. ये देखिए मेल यहां भी 122 और 70 एंड 52, दोनों डाटा सेम है. बस फर्स्ट वाले क्लासिफिकेशन में हमने मेल फीमेल को प्रायोरिटी दी, पहले रखा, और सेकंड वाले पॉपुलेशन में हमने एजुकेशन और अनएजुकेटेड को पहले रखा. क्लियर है? अब देखिए फीमेल को देखिए जरा सा. फीमेल अगर आप देखते हैं तो फीमेल टोटल 118 है, और सेकंड में आप देखेंगे कि 40 एंड 78, 118 यहां भी. अब यस सर, सेम है. सेम है. यस सर. अनएजुकेटेड एजुकेटेड को देखिए,
यहाँ 110 है, यहाँ 70, यहाँ 40, 110। अब अनएजुकेटेड को देखिए। मींस ये स्लाइड केवल ये प्रेजेंट करना था कि मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है अगर उसको रॉन्ग मींस सीक्वेंस अलग कर दिया गया, मेल फीमेल की जगह हमने एजुकेशन अनएजुकेशन पहले ले लिया, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये डिफरेंट है, बट डिफरेंट नहीं है। वो क्लासिफिकेशन की टेक्निक है। आप एक ही डाटा को डिफरेंट वे से क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इट्स क्लियर? Yes, sir. थैंक यू। Yes, sir. Yes, sir. अब टर्मिनोलॉजी में आते हैं कि जब भी हमें एट्रीब्यूट्स को पढ़ना है, हमें क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन के पहले हमें टर्मिनोलॉजी जो भी एट्रीब्यूट्स के रेस्पेक्ट में यूज होती उनको समझना है। सबसे पहले पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या होते, निगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या होते, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, यूनिवर्स, क्लासेस, क्लास फ्रीक्वेंसी, ऑर्डर ऑफ क्लासेस, अल्टीमेट क्लास, नंबर ऑफ क्लासेस, ये सारी टर्मिनोलॉजी पहले आप क्लियर होगी, तब आप जाके मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ 2 और 3 और 4 एट्रीब्यूट्स आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, देखिए एट्रीब्यूट्स के बारे में आप केवल इतना समझिए कि जब किसी क्वालिटी की हम बात करते तो एट्रीब्यूट्स की बात होती है, और क्वालिटी में प्रेजेंस और एब्सेंस को हम डिनोट करते। और पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स लाइक एजुकेटेड, इम्प्लाइड। मींस कि अगर एजुकेशन की बात हो रही है तो एजुकेटेड को हम पॉजिटिव एट्रीब्यूट बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो एम्प्लॉयड को हम पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। मींस प्रेजेंस एट्रीब्यूट्स, जिस एट्रीब्यूट्स की हम बात कर रहे हैं वहां पे कोई भी चीज अगर प्रेजेंट है, और पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स जनरली डिनोट बाय सिंपल इन कैपिटल लेटर ए बी सी डी ई एफ जी। मींस कि अगर आप सिंगल एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं एजुकेटेड की तो ए से डिनोट होगा, एजुकेट और एम्प्लॉयड दोनों को आप ले रहे हैं तो एजुकेशन को कैपिटल ए, एम्प्लॉयड को कैपिटल बी। In the case of one attribute, educated A. In the case of more than one attribute, educated को A, implied को B. अब positive attributes के बाद negative attributes. The absence of attribute is called negative attribute, like uneducated, unemployed. और negative attributes को हम अल्फा, बीटा, गामा या small letter A, B, C, D, E, F, G, H से denote करते हैं. और in the case of one attribute, uneducated is small a, or in the more than one attribute, uneducated is small a, unemployment is small b. इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स. जब हम एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन की बात कहां आएगी? जब मोर देन वन एट्रीब्यूट्स मींस 2 एट्रीब्यूट्स, 3 एट्रीब्यूट्स में हम जाएंगे वहां. When 2 or more attributes in the same universe studies, suppose association between education and employment is to be studied, कि हमें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में एसोसिएशन चेक करना है, तो उस केस में एजुकेशन ए हो गया, एम्प्लॉयड बी हो गया, क्योंकि दोनों प्रेजेंस है, पॉजिटिव एट्रीब्यूट है, हम कैपिटल ए बी से डिनोट करेंगे, और अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड को स्मॉल ए स्मॉल बी से. अब कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड पर्सन जितने भी होंगे वो कैपिटल ए बी से डिनोट किए जाएंगे. क्यों? क्योंकि आप जब भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एजुकेटेड आपको मालूम है कि ए है और एम्प्लॉयड आपको मालूम है कि बी है, तो एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड ए बी हो गए. और इसी तरह से जब आप दूसरा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, अनएजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड, अनएजुकेटेड स्मॉल ई, अनएम्प्लॉयड स्मॉल बी, ये कॉम्बिनेशन ए बी का होगा. एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड, अनएजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड. अब यहां पे देखिए, ये जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, 3 तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे. दिस इज द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन में हम कैसी बात कर रहे हैं? केवल पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन है. सेकेंड वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ negative attributes, and third and fourth are the combination of mixed positive and negative. It is clear?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. All clear. Yes, Yes, sir. Clear, sir. Now we come on universe. Total number of unit or facts is called universe and in the symbol of n. मीन्स कि जिस टोटल यूनिवर्स या पॉपुलेशन की हम बात करके उस सिंबल को हम n से डिनोट करते. अब क्लासेस. Different condition representing presence or absence of qualitative characteristics of their combination terms as called classes. The classes are three types. Positive classes, हमने आपको बता दिया. Positive class कब होगी? जब both the attributes are present, education and employment. Clear? Yes, sir. 2 एट्रीब्यूट्स के केस के, 3 एट्रीब्यूट्स के केस में. 3 एट्रीब्यूट्स मीन जब हम ए बी सी की बात करेंगे तो ए बी, ए सी, बी सी ये 2 कैटेगरी के एट्रीब्यूट्स होंगे और एक 3 कैटेगरी का होगा ए बी सी. और निगेटिव क्लास की अगर हम बात करते हैं तो 2 में ए बी दोनों एब्सेंट है और 3 में ये होगा. मिक्स क्लास की अगर हम बात करते तो मिक्स क्लास की बात हम करेंगे तो 2 एट्रीब्यूट्स में हमने देखा ए कैपिटल स्मॉल बी. मींस ए कैपिटल क्या था? एजुकेटेड के लिए, और स्मॉल बी अनएम्प्लॉयमेंट, और स्मॉल ए अनएजुकेटेड और बी एम्प्लॉयड. इसी तरह 3 कैटेगरी में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. पॉजिटिव क्लासेस की हम बात करते हैं. द क्लासेस विच रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स और कॉल्ड पॉजिटिव क्लासेस. जब हम ए बी दोनों की बात करते हैं और 3 केस में जब हम बात करते हैं. निगेटिव क्लासेस ये भी हमने डिस्कस कर लिया जब बोथ द एट्रीब्यूट्स कि हम एब्सेंस या प्रेजेंस और एब्सेंस को कंबाइन न करते हुए केवल प्रेजेंस को लेंगे तो पॉजिटिव, केवल एब्सेंस को लेंगे तो निगेटिव. मिक्स जब एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंस होगी और दूसरी एब्सेंट होगी, या पहली एब्सेंट होगी दूसरी प्रेजेंट होगी, इन द केस ऑफ 2 और 3 एट्रीब्यूट्स के केस में. अब नंबर ऑफ क्लासेस. नंबर ऑफ क्लासेस 2 एट्रीब्यूट्स के केस में, 3 एट्रीब्यूट्स के केस में अलग होगी. इसका फार्मूला है 3 to the power n. n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स. इन द केस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स नंबर n क्या होगा? मेरा 2 होगा और फार्मूला 3n है, यानी 3 to the power 2. मींस टोटल क्लासेस मेरी 2 एट्रीब्यूट्स के केस में 9 होगी और जिसे हम 9 स्क्वायर टेबल से प्रेजेंट करते हैं. अभी फर्दर हम लोग देखते हैं उसे. और इन द केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 27 होगी क्योंकि फार्मूला 3 to the power n है. n यहाँ पे 3 है. 3 एट्रीब्यूट्स के केस में 3 to the power of n, 3 into 3 into 3 27. अब ऑर्डर ऑफ क्लासेस की बात करते हैं. ऑर्डर ऑफ क्लासेस में 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर. ये क्लासिफिकेशन के समय आपको ध्यान रखना होगा कि हमें ये तो पता चल गया कि 2 एट्रीब्यूट्स के केस में क्लासेस 9 है, 3 एट्रीब्यूट्स के केस में मेरी क्लासेस 27 है, लेकिन उन क्लासेस का ऑर्डर क्या होगा? 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर. और यहां पे आप ये ध्यान रखिएगा कि इन द केस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स 0 फर्स्ट सेकंड होता है केवल, और इन द केस ऑफ 3 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे हो 2 के केस में और ये 3 के केस में. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, इसको हम 0 ऑर्डर बोलते हैं. फर्स्ट ऑर्डर में हम जब भी एक एट्रीब्यूट का प्रेजेंस और एब्सेंस लेते हैं दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर. मींस कि जो हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखा था, मेरी पॉपुलेशन 240 थी तो 240 मेरा n हो गया. और उसके बाद फर्स्ट पॉपुलेशन में हमने क्लासिफिकेशन मेल और फीमेल का किया था तो हम मेल को कैपिटल ए, फीमेल को स्मॉल ए, और सेकंड जो मेरा क्लासिफिकेशन है वो बी बी. मीन्स कि हम एजुकेटेड अनएजुकेटेड यहां कर सकते हैं. फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकंड ऑर्डर में कॉम्बिनेशन आपको यस एनीवन
सर जो स्मॉल ए है सर जब क्या कहते हैं दो क्लासेस का, जब दो एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन होता है तो उसी को ही हम सेकंड ऑर्डर बोलेंगे। हाँ, अभी हम इसका आगे एक चार्ट दिखाएंगे, उससे एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको जी सर, यहाँ ये जी। ध्यान रखना है कि n इक्वल टू दिस प्लस दिस एंड n इक्वल टू दिस प्लस दिस ऑल्सो। क्लियर? क्योंकि उसी n को हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्लासिफाई करते, फिर उसी n को हम सेकंड एट्रीब्यूट्स में क्लासिफाई करते, प्रेजेंट और एब्सेंट। तो दो n a कैपिटल प्लस स्मॉल बी होगा और n इक्वल टू कैपिटल बी स्मॉल बी भी होगा, और n इक्वल टू कैपिटल सी स्मॉल सी भी होगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे चार्ट में तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर टू ग्रुप में, और जब हम थर्ड ऑर्डर पे चलते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम टू एट्रीब्यूट्स के केस में केवल इतना ही होता, और जब हम 3 एट्रीब्यूट्स करते हैं तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जीरो सारे होंगे। अब इसको 1 बाय 1 हम डिस्कशन करते हैं। अल्टीमेट क्लास देखिए क्या, अल्टीमेट क्लासेस इन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्स द क्लासेस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर मींस कि जब हम 2 एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं तो मेरा हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? सेकंड ऑर्डर। जब 3 एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? थर्ड ऑर्डर। तो 2 एट्रीब्यूट्स के केस में अल्टीमेट क्लास मेरा सेकंड ऑर्डर होगा, और 3 एट्रीब्यूट्स के केस में अल्टीमेट क्लासेस मेरा थर्ड ऑर्डर। ये क्लियर? अब अल्टीमेट क्लासेस कैसे इसको भी डिटरमाइन करते हैं, इसका फार्मूला 2 टू द पावर n है, और यहां भी n इक्वल टू नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। 2 एट्रीब्यूट्स के केस में अल्टीमेट क्लासेस 4 होंगे, और 3 एट्रीब्यूट्स के केस में अल्टीमेट क्लासेस 8 होंगे। अब ये देखिए 9 को प्रेजेंट किया है, तो अब फार्मूला मेरा क्या है? नंबर ऑफ क्लासेस का 3 टू द पावर ऑफ n। तो 2 एट्रीब्यूट्स के केस में मेरा जो n है, n क्या होता? 2। तो नंबर ऑफ क्लासेस कितने हो गए मेरे? 9। 3 इंटू 3 पावर 2 करेंगे तो 3 इंटू 3, देखिए ये 9 क्लासेस हैं आपके 9 यस सर, यस स्क्वायर। सर। अब इसके बाद पॉजिटिव क्लासेस। अब कोई बताएगा मुझे कि पॉजिटिव क्लासेस कौन कौन से हैं? ए बी, यस सर। बी सर, एंड बी, बी है सर सर, ए भी हो गया सर, बी हो गया सर, एन हो गया सर, ए हो गया। ये ए बी, ये जो है ये कॉम्बिनेशन सर। ऑफ पॉजिटिव क्लास है। ठीक यस है, सर, कॉम्बिनेशन ऑफ यस सर। ठीक तो है। सर अब बी आप और ए लोग- हो जाएगा, ए और बी। ठीक, अब आप लोग समझ गए। अब सुनिए, यस सर। निगेटिव क्लास एग्जैक्टली क्लियर है? सर लास्ट क्या होगा? ठीक है, केवल समझिए। सर लास्ट का एन भी तो है। हाँ नहीं, ठीक है, अभी हम बता रहे हैं, आप देखिए। मिक्स क्लास, जब हम मिक्स क्लास की बात करेंगे तो ये 4 जो हैं मेरे मिक्स क्लास हैं, और मिक्स क्लास की जब हम बात करेंगे उसके बाद 0 ऑर्डर पे आते हैं। 0 ऑर्डर हमने आपको क्या बताया N, था? हमेशा n है। सर, और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात करते तो फर्स्ट ऑर्डर मेरा ये है, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, और दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर a प्लस होके n हो जाएगा इधर, और यहां भी b प्लस स्मॉल b होके प्लस हो जाएगा, मींस n के इक्वल होगा। फिर उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर की बात करते, सेकंड ऑर्डर ही ये है मेरा सेकंड ऑर्डर। मींस देखिए फर्स्ट ऑर्डर ये हुआ, सेकंड ऑर्डर ये, सेकंड ये, और ये थर्ड ऑर्डर है। सॉरी, n 0 ऑर्डर, ये फर्स्ट और ये सेकंड ऑर्डर, ये भी फर्स्ट। अब इसके बाद देखिए सेकंड ऑर्डर को ही हम क्या बोलते? अल्टीमेट क्लास। अल्टीमेट क्लास। आपको बताया था कि 2 एट्रीब्यूट्स के केस में सेकंड ऑर्डर ही मेरी अल्टीमेट क्लास होती। ठीक है, ये। और अगर आप chi स्क्वायर टेस्ट कैलकुलेट करते
तो आपने वहां येट्स करेक्शन एक पढ़ा होगा, और येट्स ने जो अपना करेक्शन दिया था उसको अल्टीमेट क्लास में वहां जिक्र है कि एनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टीमेट क्लास नॉट लेस देन 5। अब अल्टीमेट क्लास का फार्मूला 2 to the power n है, मींस 2 एट्रीब्यूट्स के केस में 2 into 2 करेंगे 4 आ जाएगा, और यूनिवर्स आपको मालूम है n, और पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स मिक्स क्लास में और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स ये आप यहां देख सकते हैं। अब आई होप कि 2 एट्रीब्यूट्स के केस में क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा आप सभी को। यस सर, यस सर। अब हम लोग 3 एट्रीब्यूट्स के केस में आते हैं, और यहां आप ध्यान रखिए यूनिवर्स को ही 0 ऑर्डर बोलते हैं 3 एट्रीब्यूट्स के केस में। इसको थोड़ा समझना टफ है कंपैरिजन टू 2। 3 एट्रीब्यूट्स में देखिए n, ये यूनिवर्स हो गया, क्लियर। यूनिवर्स को ही हम बोलते 0 ऑर्डर, तो यहां n ही मेरा 0 ऑर्डर हो गया। फर्स्ट ऑर्डर में a एंड फर्स्ट ऑर्डर a एंड स्मॉल a, तो कैपिटल A पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हो गया और स्मॉल a निगेटिव एट्रीब्यूट्स हो गया, क्लियर। अब सेकंड ऑर्डर पे हम चलेंगे तो ए बी पॉजिटिव क्लास मेरा हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी ये दोनों मेरे मिक्स क्लास हो गए, और स्मॉल ए स्मॉल बी ये मेरा नेगेटिव क्लास हो गया। अब थर्ड ऑर्डर पे हम आते हैं। थर्ड ऑर्डर को ही हम अल्टीमेट क्लास कहेंगे 3 एट्रीब्यूट्स में, और इसका फार्मूला क्या है 2 to the power n, और 3 एट्रीब्यूट्स में n 3 हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 करेंगे 2 into 2 into 2, 2 into 2 4 into 2 8, मीन्स यहां जो अल्टीमेट क्लास मेरी बनेगी वो 8 की बनेगी, क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. अब देखिए नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस 3 एट्रीब्यूट्स में कितनी होती हैं? 27 से 27। 7। यहां कितनी दिखाई दे रही हैं? पंद्रह सर। 8। बाकी 15। अब देखिए यहां जो हमने 3 एट्रीब्यूट्स में क्लासिफाई किया है, n को केवल a और स्मॉल a में किया, मींस अभी हमें b में करना है, c में करना है, तब जाके मेरा 3 एट्रीब्यूट। और नेक्स्ट तैयार होगा सर। स्लाइड जो हम दिखाने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। ये देखिए n a और कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर सेकंड कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड थर्ड कैपिटल सी स्मॉल सी। अब इन तीनों में हमने किया तो कितने क्लासेस हो गए नंबर ऑफ? 45 सर। और फार्मूले से क्या आ रहा था? 27 27. 27। अब देखिए जब आप तीनों को ध्यान से देखेंगे तो ये 8, ये 8 और ये 8 तीनों कॉमन ही है, सेम है। तो Yes, आप sir. इसमें से केवल आपको कोई भी 1 ले लेंगे 8 आ जाएगा, क्लियर? यस सर, यस प्लस सर। यहां सेकंड ऑर्डर में 4, फर्स्ट में 4, सेकंड में 4, थर्ड में 4, ठीक है? यस सर। कितने हो गए? 20 और प्लस 20 सर। यस सर। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ 2 और यहाँ 2, मीन्स 2 + 2 + 2 कितने हुए? 26. 26. 26 सर। और एक 30, आपका है 26 है। दैट इज 20। 26. हो 27. अब इसको और ये आसानी से समझते हैं कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। ऐसे देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग है।
देखिए ये तीनों जो हमने ब्रेकअप किया है, माइक म्यूट कर दीजिए आप सभी लोग। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसका ट्रिक पकड़ लें कि ये तीनों कैसे बनी है। तो देखिए सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन हमने किया है उसमें यहां फोकस करिए, ए के बेस पे हमने कैटेगरी किया, फिर बी और फिर सी, फिर सेकंड में जब मैं आया हूं तो बी सी ए, और थर्ड में जब मैं आया हूं तो सी ए और बी। अब यहां पे समझिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जब मैं ए को देख रहा हूं तो ए की प्रेजेंस और ए की एब्सेंस को डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। प्रेजेंस एब्सेंस मींस आपको मालूम है कि जब भी हम कैपिटल में आ रहे हैं तो प्रेजेंस हो रहा है, और जब स्मॉल में जा रहे हैं तो एब्सेंट। सेकंड कैटेगरी में देखिए बी प्रेजेंट एब्सेंट, और यहां भी बी प्रेजेंट और यहां एब्सेंट। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये ए में एज इट इज कैपिटल लाया, यहां भी कैपिटल लाया, यहां स्मॉल ए एज इट इज लाया, स्मॉल ए लाया। बस मैंने सेकंड रो में बी कैपिटल स्मॉल ऐड किया, बी कैपिटल स्मॉल ऐड किया। जब हम थर्ड में आते हैं तो यहां का ए बी हम एज इट इज ले आए, यहां भी यहां का ए बी भी हम एज इट इज ले आए, यहां स्मॉल ए कैपिटल बी एज इट इज, यहां स्मॉल ए स्मॉल बी एज इट इज। और थर्ड में हम केवल कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, मींस ये हमने किया है। और जब हम सेकंड पे आते हैं तो हम फर्स्ट में बी का प्रेजेंस और एब्सेंट लेते हैं, फिर बी का प्रेजेंट यहां एज इट इज रखते हैं, और फिर सी का प्रेजेंस एब्सेंट और सी का प्रेजेंस एब्सेंट, और फिर थर्ड। और इसी तरीके से आप बना लेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ध्यान रखना है पहले ए बी सी करना है, फिर बी सी ए करना है, फिर सी ए बी करना है। एनी डाउट? नो सर। नो सर, ऑल क्लियर सर। केवल हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स का। यस सर। अब हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे आते हैं कि अब हमने जो भी एट्रीब्यूट्स लिया था उसको हमने क्लासिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि पॉजिटिव है, निगेटिव है, कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है, निगेटिव का है, मिक्स है। अब हम अपने सेकंड पार्ट पे चलते हैं, लेकिन आप सभी को हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए प्रोबेबिलिटी का बेसिक आना बहुत ही जरूरी है। मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा तो नहीं रहा हूं, केवल एक दो स्लाइड आपको प्रोबेबिलिटी की दिखाना चाहता हूं। इन द केस ऑफ वन कॉइन टॉस, आप सब लोगों ने सिक्का देखा होगा, कॉइन आप टॉस करेंगे तो उसमें हेड भी होता है, टेल भी होता है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 होती है, टेल की भी 1 होती है। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कैलकुलेट करना चाहते तो हेड अपॉन हेड प्लस टेल मींस प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है इवेंट हैपनिंग अपॉन टोटल इवेंट, मींस कि अगर हम हेड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो हेड अपॉन हेड प्लस टेल सिंगल कॉइन के टॉस पे, और प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 1/2 हो जाएगी हेड के आने की। क्लियर? यस सर। यस। यहीं पे यस सर। इवेंट ऑकरिंग को हम P से शो करते हैं और इवेंट नॉन ऑकरिंग को हम Q से। मींस अगर टेल की हम बात करते या हेड ना आने की बात करते तो वो 1 माइनस P हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, Q भी आपका 1/2 होगा इस केस में। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस अब सर। देखिए इन द केस ऑफ 2 कॉइन, जब आप 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो रिजल्ट आपका हेड हेड आ सकता, हेड टेल आ सकता, टेल हेड आ सकता, टेल टेल आ सकता। तो अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड। अब देखिए इस केस में अगर हम करते हैं तो टोटल मेरे पास इवेंट कितने हो गए? 1 2 3 4। हाँ, 1/4। बोथ हेड देखिए कितने टाइम्स आएगा? 1
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4। 1/4 1/4 4 क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, 1 2 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड। तो देखिए, अगर जब हम 1 हेड तक तो ठीक था, जब हम 2 हेड पे आए तो बोथ हेड कैसे होगा? हेड एंड हेड। और एंड का मतलब जो प्रोबेबिलिटी थ्योरम में कहता है वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, 1/4 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड 2/4 आएगा, क्योंकि यहां भी 1 हेड है, यहां भी 1 हेड, तो ये दोनों 2 इवेंट हो गए आउट ऑफ 4, तो 2/4। या इसको हम ऐसे समझ सकते, हेड एंड टेल और हेड एंड टेल, या टेल एंड हेड होगा यहाँ। तो और का मतलब एडिशन थ्योरम होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो ये इस कॉन्सेप्ट से आपका 2/4 आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड क्या होगा? बोथ हेड और 2 हेड बोथ आर सेम, एटलीस्ट 1/4 एटलीस्ट 1 3/4 होगा। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता? 1 का मतलब कम से कम एक आए, तो ये भी आए और ये भी आए, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा। इस तरीके से बेसिक नॉलेज आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरम की होनी चाहिए। इसको इस कैटेगरी में भी आप कर सकते हैं, या एटलीस्ट 1 के केस में आप 1 माइनस ऑल द टेल भी कर देंगे तो भी आपका आ जाएगा। ऑल द टेल 1/4 है तो 1 माइनस 1/4 करेंगे। और ये सब जैसे जैसे आप क्वाइन को ज्यादा टॉस करेंगे, मींस 1 क्वाइन से 2 पे आएंगे तो थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी, 2 से 3 जाएंगे तो और दिक्कत बढ़ेगी, 3 से 4 जाएंगे तो और दिक्कत बढ़ेगी। आप प्रोबेबिलिटी ये सारी चीजें ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें, ये तुम 3 क्वाइन तक मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर मैं 400 क्वाइन को टॉस करता हूं, तो प्रोबेबिलिटी को इस तरह से एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही लेंदी होगा। तो उसके लिए सर्टेन थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, बेस थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, या उसके आगे इसी पे बेस्ड आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी हैं, बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, सब इसी पे बेस्ड है। तो आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए। अब ये एक प्रॉब्लम है मेरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। ए क्वाइन वाज टॉस्ड 900 टाइम्स and the head turn up 471 times. Test the hypothesis that the coin is unbiased. देखिए, अगर आप एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो हेड की प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है 1/2। अगर आप 900 टाइम करते हैं तो हेड कितना आना चाहिए? 450। बट आपका आया कितना? 471 अब आपको ये हाइपोथेसिस करना है कि क्वाइज इन अनबायस्ड। हाइपोथेसिस हमने आपको बता दिया कि एन आइडिया प्रपोज फॉर द आर्गुमेंट, इट कैन बी टेस्टेड, माइट बी ट्रू और नॉट। क्लियर? अब इसको टेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या हमें तो नल हाइपोथेसिस हमें करना पड़ेगा। क्या नल हाइपोथेसिस हम कर सकते हैं? यस सर। इज अनबायस्ड, कि मेरा जो क्वाइन है वो अनबायस्ड है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? वो नल का जस्ट रिवर्स होती, क्वाइन इज बायस्ड। अब हम इस अपनी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। ऑब्जर्व जो मेरा नंबर ऑफ हेड है कितना? 471 सर। लेकिन क्वाइन अगर अनबायस्ड है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 450। अब जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हम यूज करेंगे, इसको जेड स्टेटिस्टिक्स या जेड स्कोर भी बोलते हैं, डिफरेंस अपॉन एसई। एसई मींस स्टैंडर्ड एरर। सबसे खतरनाक चीज जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की है वो स्टैंडर्ड एरर है सर। ठीक है, इसको कल वेरिएबल हम पढ़ाते समय स्टैंडर्ड एरर को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। वेरिएबल का स्टैंडर्ड एरर अलग होता और थ्योरम और जितने भी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है सबका स्टैंडर्ड एरर अलग होता। स्टैंडर्ड एरर को हम
स्टैंडर्ड डिविएशन अभी आप समझ लीजिए और उस पे आगे बढ़ते हैं, कल हम इसको इलेबोरेट करेंगे। तो जो ये थ्योरम मेरा है इवेंट हैपनिंग नॉन हैपनिंग का, बायनोमियल थ्योरम से ये लिया गया है। स्टैंडर्ड डिविएशन ये बायनोमियल थ्योरम का है, NPQ। तो 900 मेरे n हो गए यूनिवर्स, और P मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 और Q प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हेड 1/2 वो भी 1/2। और इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो 900 का 1/2 450, उसका 1/2 225, तो उसका अंडर रूट 15 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन हमने लिया ताकि डेसिमल में ना आए। तो अब मेरी स्टैंडर्ड एरर निकल गया, और डिफरेंस मेरा क्या है? डिफरेंस 471 और 450 का डिफरेंस 21। तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मेरा 1.4 आया। अब जो भी थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन या हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कंक्लूजन हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज लेस देन 1.96 स्टैंडर्ड एरर एट 5%, it can be concluded that the coin is unbiased। मीन्स ये जो मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है ये 1.96 से कम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉइन इज बायस। अब आप हमें ये बता दीजिए, तो फिर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस क्यों है? So this difference is because of chance. ये डिफरेंस जो है ड्यू टू चांस, मींस मे बी कि आप दोबारा अगर फिर से 900 टाइम टॉस करें तो 150 आ जाना चाहिए। ड्यू टू चांस का मतलब आपके जो ट्रायल था आपका बार बार कॉइन को टॉस करना, उसमें कुछ बायसनेस थी, और वो चेक करना पड़ेगा कि वो आपके ट्रायल या सैंपलिंग एरर है कि नॉन सैंपलिंग एरर है, पर्सनल बायसनेस है, क्या है। लेकिन कॉइन में कोई दिक्कत नहीं है, और ये सारी दिक्कत ट्रायल में है। इज इट क्लियर? अब आते हैं। Yes, sir. ये देखिए, सेकंड आपने 900 टाइम्स किया, 500 टाइम्स आ गया। अब बताइए यहाँ पे, फिर हम सेम स्टेप सेम प्रोसीजर एडॉप्ट किए। अब यहां डिफरेंस कितना है? केवल ऐसी भी मेरा सेम होगा क्योंकि 900 टाइम्स हम कर रहे हैं, और केवल डिफरेंस मेरा 50 हो गया। ये 400 नहीं, ये 500 है, ठीक है। 500 माइनस 450, 50/15 3.33। तो अब ये बायस्ड हो गया होगा कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन 1.96 कॉइन इज बायस्ड। मींस यस। यहां पे क्या है कि बाई चांस अगर है उससे बहुत ज्यादा आपका आ रहा है, मींस कि यहां पे हम ये कह सकते कि ये जो मेरा डिफरेंस है वो कॉइन जो मेरा है वो बायस्ड है, कॉइन में कुछ गड़बड़ी है। क्लियर है ये दोनों टेस्ट? यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम फर्स्ट देखिए। प्रॉब्लम सेकंड देखिए, कुछ बोलना नहीं है, केवल देखते रहिए। प्रॉब्लम थर्ड, प्रॉब्लम फोर्थ। अब मान लीजिए रोज आपको ये काम करना है, रोज एक कॉइन 900 टाइम्स आप टॉस कर रहे हैं और आपको बार बार चेक करना है, तो क्या बार बार टेस्ट करेंगे रोज रोज? नहीं। हमारे जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी थ्योरम ये कहता है कि अगर ऐसी समस्या हमें है तो हम क्या करेंगे, हम एक लिमिट बना के रख लेंगे अपनी, और वो लिमिट क्या है? एनपी मीन प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर। मींस हमने एक लिमिट बना दी कि 900 कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर 15 आएगा, और वो 15 5% सिग्निफिकेंट लेवल पे, मीन जो मेरा 450 है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एनपी होता है, नंबर ऑफ ट्रायल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, मींस 900 into 1/2
तो ये मेरी लिमिट आ गई, मींस मेरी लिमिट आ गई 420.6 टू 480.4, मींस कि अगर हम 900 टाइम टॉस करते और विद इन द लिमिट हेड आता तो अनबायस्ड, और बियॉन्ड द लिमिट आता तो बायस्ड, मींस हम लिमिट को पहले निकाल के रख लेंगे। और अब हमें पता चल गया कि ये देखिए 425 मींस 420 और 480 के बिटवीन है, तो अनबायस्ड। 475 420 480 के बिटवीन है, अनबायस्ड। अब बायस्ड कब होगा? जब लेस देन 420 और मोर देन 480। क्लियर है? तो अब a coin was tossed 900 times, calculate the limit of expected frequency। और जब भी हम एक्सपेक्टेड की बात करते, हमें किसी न किसी थ्योरम में जाना होगा और उस थ्योरम में जाके हमें ये लिमिट सेट करनी होगी। उसी थ्योरम का हमें स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड एरर और मीन लेके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, 1%, इट डिपेंड्स अपॉन यू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, ऑल क्लियर। ओके, प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। अब हम आपने जो इनॉग्रल स्पीच में हम लोगों ने बात की थी, इस क्वेश्चन को जरा सा पढ़िए, प्रॉब्लम को पढ़िए। In 7 days online workshop on research methodology, out of 240 participants, 180 male and 122 female. Find out correctness of this assumption that gender ratio 1:1. देखिए, ये जो वर्कशॉप में आप लोग हैं, कल सुबह मैंने डाटा लिया, उसमें 240 पार्टिसिपेंट्स का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से 118 मेल हैं, 122 फीमेल हैं। क्या हम ये कह सकते कि ये जेंडर रेशियो 1:1 को प्रूफ कर रहा है या नहीं? यस सर, क्योंकि माइनर डिफरेंस है। हाँ, नहीं, ऐसे आप नहीं कह सकते। ठीक है, आपको देख के जज नहीं करना है, क्योंकि रिसर्चर नहीं बोलता, उसका डाटा बोलता है। तो अब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें करनी पड़ेगी, और हम टेस्ट स्टेटिस्टिक्स से न करते हुए हम काई स्क्वायर टेस्ट से करने जा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट स्टेटिस्टिक्स तो आप देख ही चुके हैं, कर ही चुके हैं। यस सर। There is no significant difference between the ratio of actual participation and gender assumption gender ratio. There is significant difference। null hypothesis मेरी हो गई नो की, और अल्टरनेटिव हो गई कि डिफरेंस है। अब काई स्क्वायर टेस्ट, मेल फीमेल, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को हम FO से डिनोट करते, 118 एंड 122। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 240 इंटू 1/2 इंटू 1/2 120 120 होगी। क्लियर है? यस सर। अब काई स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, सिग्मा FO माइनस FE स्क्वायर अपॉन FE। क्लियर? इसको सॉल्व कर दीजिए, 0.0667 आ गया। अब आपको काई स्क्वायर टेबल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे काई स्क्वायर टेबल आपको गिवन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे, 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे 3.841। तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू है, तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे आप? बताइए। Null hypothesis accepted. नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है सर। एक्सेप्टेड, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। इट्स क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. अब हम यहाँ पे 5%, 1% दोनों लेवल पे देख लेते। 5% पे काई स्क्वायर टेबल 3.84 है, 1% पे 6.635 है, मींस बोथ द सिग्निफिकेंट लेवल पे क्या है? एक्सेप्टेड है नल हाइपोथेसिस। Yes, sir. तो अब कंक्लूजन आप लिख दीजिए। द ऑब्जर्व्ड जेंडर रेशियो इन द वर्स ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस फ्रॉम द एंसर ऑफ 1:1। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब फिर आते हैं, ये देखिए सेकंड। इन 7 days ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन रिसर्च मेथोलॉजी, आउट ऑफ 240 पार्टिसिपेंट्स, 132 इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकल एंड 108 इन थ्योरी। करेक्टनेस ऑफ दिस assumption दैट पार्टिसिपेंट हाईली इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकल। ये प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है सब।
और आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करना है, फिर हाइपोथेसिस करना है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट, फिर कौन सा टेस्ट लगाएं, फिर उस टेस्ट को कैसे रिजेक्ट या एक्सेप्ट करें। यहां भी क्या होगी नल हाइपोथेसिस। इस केस में कोई बताए कि नल हाइपोथेसिस क्या होगी। हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा सर, अल्टरनेटिव एक्सेप्ट होगा सर। नहीं होगी क्या ये बताइए। नल हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे हम। पार्टिसिपेंट्स हाईली इंटरेस्टेड नहीं है प्रैक्टिकल में। यहाँ देखिए, यहाँ मेरा क्या था, दोनों प्रॉब्लम को समझिए जरा सा कि जेंडर रेशियो यहाँ पे क्या करना था, 1:1 हमें ये हाइपोथेसिस थी। और यहाँ पे सेकंड केस में जो हमारा हो रहा है, ये क्या हाइपोथेसिस हम डिजाइन करेंगे। Hello. That participants are highly interested in the practical. There is no Anyone significant difference between ratio of participant interested in practical and interested in theory. वेरी गुड। देखिए, आपको नल हाइपोथेसिस हमेशा ये लेना है कि आप दोनों को बराबर ट्रीट कर रहे हैं। मींस there is no significant difference between participant interest in practical और theory। क्लियर है। अब देखिए, मैंने यहां जानबूझ के हाईली इंटरेस्टेड वर्ड लिखा था इन प्रैक्टिकल। हम यहां फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम के ये भी लिख सकते थे कि करेक्टनेस ऑफ दिस एजम्पशन दैट पार्टिसिपेंट्स इक्वली इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकल ऑफ थ्योरी। लेकिन हमें आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी क्लियर करना है और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल क्लियर करना है, तभी आपको बढ़िया नॉलेज होगी, जो कि इनॉग्रल स्पीच में भी हम लोगों ने कहा था। क्लियर एवरीवन। Yes sir. यस सर। अल्टरनेट उसी का जस्ट अपोजिट। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्ट इन प्रैक्टिकल और थ्योरी। और फिर हम काई स्क्वायर टेस्ट लेंगे। ऑब्जर्व 132 108 है प्रैक्टिकल थ्योरी का, और एक्सपेक्टेड हमारा हम इक्वली मान रहे हैं, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस मींस 120 120। तो अब का स्क्वायर मैंने निकाला तो ये आया 2.4 और टेबुलेटेड वैल्यू 3.81। तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे हम। क्या कंक्लूजन ड्रॉ। and alternate hypothesis is rejected. थैंक यू। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है कि कैलकुलेटेड वैल्यू। माइक कर लें आप लोग। काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से कम है तो हम अपनी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे, और 5% 1% दोनों पे आप देख लीजिए वही है। और फिर हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकल और थ्योरी। इट्स क्लियर टू एवरीवन। यस सर। Yes sir. अब आइए इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिए। सेम है। अब इसको हमने काई स्क्वायर से किया था, अब हम इसको टेस्ट स्टेटिस्टिक्स से प्रूफ करते हैं। काई स्क्वायर से हमने नल हाइपोथेसिस चेक कर लिया है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन रेशियो मेल एंड फीमेल। अब टेस्ट स्टेटिस्टिक्स से अगर हम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फीमेल की क्या आएगी, 1/2। और सारे मेल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 120। 240 में से 1/2 करेंगे मेल को तो। और ऐसी NPQ यहां ये आ गया स्टैंडर्ड एरर मेरा। और अब हम डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स मेरा ये कैलकुलेट हुआ, और कंक्लूजन less than 1.9 SE, it can be concluded in male and female participation in equal number। ये क्लियर है सबको। यस मीन्स
किसी भी एक प्रॉब्लम फार्मूलेशन को आप दो टेस्ट से भी प्रूफ कर सकते हैं। हमने काई स्क्वायर से किया तो भी वही रिजल्ट आया, और टेस्ट स्टेटिस्टिक से हमने किया तो भी वही रिजल्ट आया। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं टेस्ट स्टेटिस्टिक्स से। नल हाइपोथेसिस, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेशन इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रैक्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरी 1/2 है, और प्रैक्टिकल इनवर्स ऑफ 240 में बाई 2 करेंगे तो 120 होगा। स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे, सेम डाटा सेट है तो स्टैंडर्ड एरर सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस मेरा 132 में से 120 करेंगे, और टेस्ट स्टेटिस्टिक्स ये आया, और लेस देन 1.96 है। It can be concluded that the participants equally interested in practical and theory. Clear? Yes sir. यस सर। On the basis of two attributes. देखिए अभी तक मेल फीमेल, थ्योरी, प्रैक्टिकल, ये सारे टेस्ट हमने वन एट्रीब्यूट्स के प्रेजेंस या एब्सेंस पे किए। अब हम आ जाते हैं ट्रू एट्रीब्यूट्स पे। क्लियर? यस सर। यस सर। अब इस डाटा को ध्यान से जरा देखिए। ये हमारे ही वर्कशॉप का टू एट्रीब्यूट्स पे क्लासिफिकेशन है। अब मैं आपको बता दूं कि ये तो मेल फीमेल आपने देखा ही अभी पिछले एग्जाम्पल में, इन दोनों को ऐड करके 240, और ये प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी भी आपने देखा, ये भी ऐड करके 240। क्लियर? अब it would be found that one participant interested in theory, out of which 56 female. तो फीमेल 56 थ्योरी में है, तो टोटल थ्योरी में 108 था, फीमेल 56 माइनस करेंगे 52 मिल जाएगा। टोटल फीमेल में से थ्योरी फीमेल 56 माइनस करेंगे 66 फीमेल प्रैक्टिकल। अब मेल में से 52 मेल थ्योरी की, तो ये मींस कि 9 स्क्वायर टेबल में अगर अल्टीमेट क्लास की कोई भी एक फ्रीक्वेंसी, ये देखिए ये 4 क्लास हमने पहले ही आपको बता दिया सेकंड ऑर्डर है या अल्टीमेट क्लास है। अल्टीमेट क्लास की अगर एक भी फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई तो बाकी तीनों फ्रीक्वेंसी को हम माइनस प्लस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ये डाटा? यस सर। यस सर। देखिए अभी तक जो हमने टेस्ट किया, हमने ये टेस्ट किया कि मेरी वर्कशॉप में मेल फीमेल इक्वल हैं कि नहीं, थ्योरी और प्रैक्टिकल में उनका इंटरेस्ट इक्वल है कि नहीं। लेकिन जब हम टू एट्रीब्यूट्स का डाटा कलेक्ट करते तो हम यहां क्या चेक कर सकते हैं? मेल का थ्योरी, मेल का प्रैक्टिकल, फीमेल का थ्योरी, फीमेल का प्रैक्टिकल, है कि नहीं? यस सर। यस सर। एनी डाउट? नो सर। नो 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 सर। नो सर। नो सर। अब ऑन द बेसिस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स जेंडर एंड स्टडी प्रेफरेंसेस पे हम आते हैं। टोटल पार्टिसिपेंट्स 240, मेल, प्रैक्टिकल, फीमेल, थ्योरी, फीमेल विथ थ्योरी। टोटल को हमने एन से डिनोट किया, मेल प्रेजेंस कैपिटल ए, फीमेल स्मॉल ए, प्रैक्टिकल कैपिटल बी, थ्योरी स्मॉल बी। क्लियर है ये सिंबॉलिक, ये सिंबल क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। और यस देखिए सर। फीमेल स्मॉल ए था और थ्योरी स्मॉल बी, तो फीमेल थ्योरी क्या हो गया? स्मॉल ए स्मॉल बी। क्लियर? अब मैं आपको बता दूं कि जितना हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ना जरूरी है उतना ही डाटा को सिंबल प्रोवाइड करना, डाटा का क्लासिफिकेशन
डाटा का आइडेंटिफिकेशन, डाटा का प्रेजेंटेशन, और जितना थ्योरेटिकल पढ़ेंगे उतना प्रैक्टिकल स्ट्रांग होगा, जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतनी थ्योरी स्ट्रांग होगी। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट जब भी हम वर्कशॉप कराएंगे एक थर्ड कॉलम भी आपको देंगे कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ, तब हम आपको 3 एट्रीब्यूट्स पे आपको क्लासिफिकेशन समझाएंगे। क्लियर सर? ये देखिए 9 स्क्वायर टेबल क्लियर है सबको इस डाटा पे बेस्ड? यस सर, क्लियर है। क्लियर। अब आते हैं हम प्रॉब्लम फार्मूलेशन पे। ये प्रॉब्लम पढ़िए। In a 7 days online workshop on research methodology, 240 participants, 118 male, 122 female. Out of 132 interested in practical and 100 theory, 56 thick. Can we infer that the study preferences, practical and theory depends upon gender? Problem clear हो रही है सबको? Yes, sir. सर अब नल हाइपोथेसिस बताइए, अल्टरनेटिव बताइए, जल्दी करिए प्लीज क्विकली। यस Yes, sir. Sir, there is no significant difference in the study preference of males and females. थैंक यू सर। There is no significant difference between study preferences depends upon gender. आप अपनी लैंग्वेज में जैसे भी लिख दीजिए, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम इसको काई स्क्वायर टेस्ट पे टेस्ट करते हैं। काई स्क्वायर का फार्मूला आपको मालूम है। अब यहां एक बात हम और काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बता दें कि काई स्क्वायर टेस्ट इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, और काई स्क्वायर टेस्ट टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी, टेस्ट ऑफ होमोजीनिटी और गुडनेस ऑफ फिट, 3 के लिए टेस्ट किया जाता है। तो यहां पे हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे? FO। देखिए ये मेरा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो हमने टेबुलेटेड किया था, अब FE हमें निकालना है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम निकाल देंगे, लेकिन आपको मैनुअल भी समझ में आना चाहिए कि ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकली है। कोई बताएगा एक्सपेक्टेड कैपिटल A कैपिटल B कैसे आएगा? एनीवन? ये 65 कैसे आया? सर रो वो जो जिस रो में है उसका टोटल एग्जैक्टली सर, थैंक यू। A and B means A into B divided by N. I think I am right, sir? Yes, sir, absolutely, sir. तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे 118 into 132 upon N, तो ये डेसिमल में आएगा 64.9 या 65.1। लेकिन यहाँ मेल फीमेल की बात है तो वो पॉइंट में नहीं हो सकते, तो आप राउंड फिगर कर लेंगे। और जब एक वैल्यू आपको पता चल गई तो 118 में से इसको माइनस करके तीनों वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। और अभी हम आपको काई स्क्वायर कैलकुलेशन नहीं पढ़ाएंगे, हम केवल कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और आपने काई स्क्वायर निकाला, 0.6735 आ गया। 5%, 1% दोनों टेबल पे आप देखिए वैल्यू ये है। तो आप नल हाइपोथेसिस क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से कम है, और ये जो डिफरेंस है बाय चांस है केवल। और कंक्लूजन, स्टडी प्रेफरेंसेस नॉट डिपेंड्स अपॉन जेंडर। Is it clear to everyone? Yes, sir.